29 बई हम पढ़ रहे हैं, परमहंस और श्री भक्ति विनोद। प्रश्न एक हम लोग पढ़े थे कल, रिपीट। प्रश्न एक, सहज परमहंस काहारा? उत्तर, स्वरूप सिद्ध भक्तगणी सहज परमहंस। अच्छा, इंग्लिश में क्या है? लेट्स रीड। सच्चिदानंद चला तीनों ठाकुर जी की जय। भक्ति विनोद वाणी वैभव। हु इज Paramahansa? The self-realized devotee is a real Paramahansa. चैतन्य शिक्षामृत 6:4। ओके, सो सहज शब्द नहीं है ट्रांसलेशन में। दैट्स ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज सहज परमहंस, और सेल्फ रियलाइज्ड इज द राइट ट्रांसलेशन। लेकिन स्वरूप सिद्ध और सेल्फ रियलाइज्ड, सेल्फ रियलाइज मीन्स जो, सेल्फ मीन्स आत्मा, रियलाइजमेंट हु हैज अंडरस्टूड द आत्मा। लेकिन जब हम स्वरूप सिद्ध कहते हैं तो स्वरूप सिद्ध का जनरली इंग्लिश है नहीं। स्वरूप, स्वरूप मीन्स इंग्लिश में, बिकॉज देयर इज नो स्वरूप वर्ड इन द इंग्लिश। स्वरूप सिद्ध, सेल्फ रियलाइज्ड रहेंगे, दैट इज द राइट ट्रांसलेशन। लेकिन इसके ट्रांसलेशन के ऊपर जगह हमें समझना चाहिए स्वरूप सिद्ध, स्वरूप आत्मा का जो निजस्व रूप है। तो सेल्फ रियलाइज somebody में से सेल्फ रियलाइज आई हैव अंडरस्टूड आई एम आत्मा, एज एन आत्मा। somebody may say I'm an atma, part of brahma, anu brahma, therefore advaitavadi। वो भी सेल्फ रियलाइज्ड हो गए in one way, not in real sense but in one way, because he has understood his आत्मा। बहुत बड़ा बात है, क्योंकि शरीर मन नहीं है, आत्मा है। लेकिन उन्होंने उतना ही जाना कि हम ब्रह्म का अंश हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ। अच्छा, पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ, देन दैट इज नॉट अद्वैतवाद, दैट्स फाइन। लेकिन उसमें केवल ब्रह्म भाव, जीव का लादनी शक्ति का जो आनंद है, ब्रह्मानंद, वही मिलेंगे उनको। वो भी सेल्फ रियलाइज। लेकिन स्वरूप सिद्ध मीन्स भगवत सेवक रूपी स्वरूप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न, गौड़लीलाय ও পৌরাণিক যুগের কতিপয় সহজ পরমহংস কাহারা? উত্তর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রী পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, শ্রী রামানন্দ প্রভৃতি ভগবত পার্ষদগণ সকলেই সহজ পরমহংস। পূর্বকালে ঋভু প্রভৃতি অনেকের গৃহস্থাশ্রমে এইরূপ পারমহংস দেখা যায়। প্রভুজি, কোশ্চেন নাম্বার 2 ইন ইংলিশ। Who were the real Paramahansas in the pastime of Sri Gaur and in the ancient times? Answer. Devoted devotees such as Sri Vas Pandit, Sri Pundarik Vidyanidhi, and Sri Ramananda Rai were real Paramahansas. In ancient times, many personalities like Ribhu were real Paramahansas, even though they were householders. প্রশ্ন সংখ্যা 3, পরমহংসগণের স্বরূপ কি, তাহাদের শাস্ত্র কি? উত্তর, যে সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে তাহারা তাহাদিওকে বা পরমহংসদিগণকে সমন্বয় যোগী বলিয়া থাকেন। যাহারা অনভিজ্ঞ বা কোমল শ্রদ্ধ, তাহারা তাহাদিওকে সংসার আসক্ত বলিয়া বোধ করেন, কখনো কখনো ভগবত বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্বলক্ষণ সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা লিঙ্গ ও ব্যবহার সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহারা পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস, এবং পারমহংসী সংহিতারূপ শ্রীমৎ ভাগবতী তাহাদের শাস্ত্র। উপক্রমণিকা। প্রভুজি, কোশ্চেন নাম্বার 3। What is the definition of a Paramahansa? Which literature do Paramahansas study? Paramahansas study. Those who have divine eyes consider a Paramahansas to be an equipoised yogi, and those who are less intelligent or third class consider a Paramahansas to be attached to the material enjoyment. Some people may occasionally even consider a Paramahansas to be opposed to the Lord. A swan like person
can identify another swan-like brother who possesses all the appropriate symptoms, whether they are from the same country or not. Although their dress, language, worship, deity, and behavior may appear different, they freely address each other as brother. These type of people are called Paramhansas. And Srimad Bhagavatam is the scripture for these Paramhansas. श्री कृष्ण संहिता इंट्रोडक्शन। प्रभु जी वहां पर फर्स्ट लाइन में क्या है, मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे है इक्विपोइज्ड विद एज ए योगी हु ओके, उससे कंसीव। next प्रश्न में डेफिनेशन स्वरूप, हम्म। परमहंस का स्वरूप क्या है? सो संज्ञा नहीं, संज्ञा इज डेफिनेशन, स्वरूप इज स्वरूप अगेन, स्वरूप का कोई इंग्लिश वर्ड हमें पता नहीं है। इसलिए जहाँ पे स्वरूप सिद्ध का वहाँ पे लिखा है कि सेल्फ रियलाइज्ड, लेकिन यहाँ पे स्वरूप का और कोई इंग्लिश नहीं है, इसलिए डेफिनेशन कहा है। ठीक है, जो ट्रांसलेशन है समझना चाहिए परमहंस का स्वरूप क्या है। मतलब परमहंस का जो लक्षण होंगे, तटस्थ तथा स्वरूप लक्षण, उसी के अनुसार उनका परिचय कैसे होगा। तो इन वन वे इट इज डेफिनेशन, लेकिन इट इज लिटिल मोर देन दैट। अच्छा, आपका प्रश्न है पहला क्वेश्चन में क्या है? जो पहली। सब लोग का दिव्य चक्षु है, दोज हु हैव द पारमार्थिक चक्षु, उन्होंने परमहंस को समन्वय योगी जानते हैं। इक्विपोइज्ड योगी, समन्वय योगी। समन्वय योगी इज उत्तम वैष्णव। समन्वय योगी जो समझ सकते हैं, समन्वय योगी समझ सकते हैं कि एक्सटर्नली तटस्थ लक्षण में अलग होने पर भी, एक्सटर्नल बिहेवियर में उनका भक्ति आचरण भी अलग हो सकता है, जीवन का आचरण भी अलग हो सकता है, लेकिन वो समझ पाएंगे कि ये भी परमहंस है। या बाद में लिखा है ना, ये स्वदेशी और विदेशी, मे बी फ्रॉम द सेम कंट्री, मे बी फ्रॉम ए डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट कंट्री, लेकिन सारग्राही है, तो वो उनको पहचान सकते हैं। दे मे बी वर्शिपिंग इन डिफरेंट वे, they may be speaking a different language, so there is no need to even uh, they don't need to converse. However, they will recognize, oh, he is a Paramashna, Samanvay Yogi. Samanvay Yogi, because they are Uttam Vaishnav, that because they are not they are not seeing the external differences or the differences in Tatastha Lakshan, because they are seeing the Sarv Lakshan of the Paramhamsas. जी। और यहाँ पे भी लिखा है कि अनभिज्ञ, सेकेंड सेंटेंस, दोज दैट आर व्हाट इज लेस इंटेलिजेंट, क्या लिखा है अनभिज्ञ, सेकेंड सेंटेंस, या लेस इंटेलिजेंट, लेस थर्ड इंटेलिजेंट, क्लास। अनभिज्ञ। हाँ, यहाँ पे इंटेलिजेंस, व्हेन वी से इंटेलिजेंट, वी आई डोंट नो व्हाट वी थिंक। अनभिज्ञ मीन्स अभिज्ञ नहीं है, दैट मीन्स दोज हु हैव नॉट स्टडीड द स्क्रिप्चर, दोज हु डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर, अनभिज्ञ। अभिज्ञ मीन्स हु आर नॉलेजेबल, अनभिज्ञ हु लैक नॉलेज of scriptural conclusions, that is anabhigya. कोमल शुद्ध थर्ड क्लास, यहाँ पे लिखा है थर्ड क्लास, इन वन वे इट इज करेक्ट। कोमल शुद्ध इज तृतीय, मतलब कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव, कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव कोमल शुद्ध सब फेथ, first class, second class, third class, but when we say third class we may misunderstand. The translation is right, but we should not misunderstand that Kanishta Vaishnav is not third class, they are Kanishta Vaishnav. Sometimes we say third class or whatever, लेकिन ये हमें समझना चाहिए, it's not the English word third class, ये तृतीय श्रेणी। कोमल शुद्ध सब फेथ, कोमल शुद्ध जिनका श्रद्धा भी दृढ़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लेट्स टेक द एसेंस कि जिनका शास्त्र ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, और जिनका श्रद्धा दृढ़ नहीं हुआ है, उन्होंने परमहंस को देखकर संसार आसक्त भी चिंता कर सकते, अरे ये संसार आसक्त, संसारी परमहंस है, लेकिन उनके आंखों में लगेगा कि ये संसारी है।
कभी कभी ये भी रहेगा भगवत विमुख है. हाँ. एथिस्ट. A Paramahamsa may be seen as an atheist by one who doesn't have Tattva or the one who is Kanishta Vaishnava. This is one important part. शास्त्र सिद्धांत, इसके मतलब तत्व ज्ञान, जिनका तत्व ज्ञान अभी नहीं हुआ है, अनभिज्ञ है, और कोमल श्रद्धा, श्रद्धा ठीक से नहीं हुआ है पूरी तरीके से. कोमल श्रद्धा का समस्या है, पहले हम लोगों ने पढ़ा ठाकुर महाशय जी के कथा से. ये कोमल श्रद्धा बहुत सारे समस्या में पड़ जाते हैं. कोमल श्रद्धा भी श्रद्धा दृढ़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए उनका वो तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्र दृष्टि नहीं है, शास्त्र सिद्धांत नहीं जानते, शास्त्र दृष्टि नहीं है, कि तत्व ज्ञान नहीं है. We were discussing the other day, if we are walking into the forest, a group of people walking into the forest in the new moon night, totally dark. Have you seen, like sometimes I गांव में कभी कभी ऐसा हुआ, मैं चल रहा हूँ लेकिन टोटल डार्क, कोई आलक नहीं है. There is no road nearby, so there is no motor vehicle going. There is no moon, new moon that day, so amavasya, and nothing, because I know the road, I'm able to walk. I have seen those. So if a group of people are, imagine that kind of situation, if a group of people are going in complete darkness, like coal, darkness, they don't know where they are stepping in, which direction they are going, right? But those who they are anabhigga, and those who are abhigga means they have learn the conclusions of the scripture, the siddhantas of the shastra. Not only they know shastra, but the siddhantas of the shastra. यहाँ से पढ़ा वहां से पढ़ा श्लोक बोल सकते हैं, बोलते वो नहीं. सिद्धांत, व्हाट इज द फाइनल कैलकुलेशन, सारग्राही. नॉट रीडिंग hundreds of thousands of verses, tens of hundreds of granthas, but they know the siddhant, the final verdict क्या है शास्त्र का. That is like in Srimad Bhagavad Gita, the siddhanta is sarva dharman parityajya. The final thing is sarva dharman parityajya. Similarly, so reading whole Gita, people may not know sarva dharman parityajya. Some say karmanni adhikaraste ma phaleshu kadachan. Right? But after following all those steps, finally sarva dharman parityajya. So Srimad Bhagavad Gita is sarva dharman parityajya. Similarly, शास्त्र का जो सिद्धांत है, that is not understood by those, they lack that knowledge, therefore they are अनभिज्ञ और कोमल श्रद्धा पूरी तरीके से. तो परमहंस वैष्णव को संसारासक्त चिंता कर सकते हैं और परमहंस वैष्णव को भगवत विमुख कह सकते हैं. तो दिस कम्स टू आवर daily discussion, is hourly discussion or every moment discussion of the Vaishnava Aparadhis. प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, गौर दास बाजी महाराज, भक्तिनाथ ठाकुर, इन सब आचार्यों का उपदेश नहीं सुनेंगे, ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे. इन सब आचार्यों का शिष्य, प्रभुपाद जी का शिष्य, दशम अधस्तन आचार्यों को सम्मान नहीं करेंगे. दैट इज द symptom of the anabhiggas and Kamala Shraddha. Otherwise, how are they not recognizing these acharyas to be Paramhamsas? Sridhar Goswami Maharaj, Madhav Goswami Maharaj, Bana Goswami Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Bhakti Soda Bhakti Sar Goswami Maharaj, Srimad Bhakti Kamal Avadut Goswami Maharaj, Bhakti Kamal Parjatak Goswami Maharaj. मैं नाम बहुत आनंद से लेना चाहता हूँ इन सभी आचार्यों का. Why are people not understanding them? Because they are anabhigga or Kamal Shraddha, and they are also guided by Aparadhis and Vaishnav group. So देखिए यहाँ पे लिखा है अनभिज्ञ और कोमल शुद्ध उन्होंने परमहंस वैष्णव जिनका दिव्य चक्षु है वही केवल जान सकते हैं, लेकिन अनभिज्ञ और कोमल शुद्ध परमहंस वैष्णव को संसारासक्त चिंता करते हैं, कभी 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 भगवत विमुख भी स्थिर कर सकते हैं, तैयार करेंगे कि हाँ ये भगवत विमुख है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4. परमहंस की शास्त्रीय शासनाधीन বা বিধিবাধ্য? উত্তর, উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন সোপানস্থ যে কিছু নিয়ম পালন করেন সে কেবল তাহাদের স্বেচ্ছাবিলাস মাত্র, নিয়মাগ্রহ. सज्जन तो सुनी 10-10, 10-10. बोलिए प्रभु जी. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ सकते हैं. Are the Paramhansas bound by the rules and the regulations of the scriptures? Whatever rules and regulations people of a lower level follow, the great personalities of the higher level follow
simply as their independent pastimes. Independent pastime. Okay. I thank for those bhaktas who have translated, क्योंकि ऐसी इतना सुंदर ग्रंथ उन्होंने ट्रांसलेट किया। अभी तो सुना जाता है भक्तिनाथ ठाकुर जी का ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं लोग, लेकिन उन्हीं के पूर्व पूर्व लोग अच्छे थे तो ट्रांसलेट किया। इसलिए जो ट्रांसलेट किया मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ। यहाँ पे समझना चाहिए जो उच्च सोपानस्थ, जो उत्तम वैष्णव है, उन्होंने लोअर लेवल का जितने सिद्धांत लिखा है शास्त्रों में, वो अगर उन्होंने पालन करेंगे, वो उनका शिक्षा विलास, दे आर बाय देयर स्वीट विल दे आर फॉलोइंग, दे डोंट हैव टू। अच्छा, आज तो समय ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लेते हैं, हो सकता है हम लोग we will discuss again tomorrow। প্রশ্ন সংখ্যা 5, পরমহংসগণ কাদের সঙ্গ বর্জন করেন? উত্তর, কর্মধর্ম সাপেক্ষ ভক্ত ও কর্মজড়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। কৃষ্ণ ভক্তি শূন্য কর্মীর তো কথাই নেই। কর্মধর্ম সাপেক্ষ ভক্ত শুদ্ধ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব সেবা কীর্তন ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন। হৃদয়ে কর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ এবং ব্যবহারে ভক্তির অনুকূল জানিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম স্বীকার করেন। যদিও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম অনেক সময় ভক্তির বাধক হয়, তথাপি স্বচ্ছন্দে নিষ্পাপে শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য নিত্য নৈমিক নিত্যনৈমিক কর্মে তিনি যথাযোগ্য যত্ন করেন। সুতরাং কৃষ্ণভক্তি সাধনে তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ। কিন্তু কর্মজরের কার্য এই যে মনে মনে কর্মকেই তিনি নিস্তারের হেতু বলি জানিয়া কৃষ্ণকর্মে আত্মভাব অনুভব করেন না। কৃষ্ণের সুখ দুঃখী উদাসীন হইয়া লোকদিওকে জড়ময় কর্মধর্ম শিক্ষা দেন। বৈদিক হইয়াও নিরপেক্ষ পক্ষযোগীকে নিন্দা করেন এবং নিজের সিদ্ধান্তকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বলিয়া লোকদিগের বুদ্ধি নাশ করেন। মূর্খ লোক তাহাকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মনে করিয়া মোহপ্রাপ্ত হন এবং নিরপেক্ষ পক্ষযোগীকে লঘুবুদ্ধির দ্বারা বিতর্ক করিয়া নষ্ট হন। পক্ষযোগীর হৃদয়নিষ্ঠা বৈদিকগণ জানিতে পারেন না, সুতরাং কর্মজড় শিক্ষককে মহাপুরুষ মনে করিয়া তদ্রূপ ব্যবহার আদি করিয়া থাকেন। পরমহংস মহাত্মাগণ তাহাদিওকে অবৈষ্ণব জানিয়া তাহাদের সঙ্গ করেন না। So we will read this, we will discuss this question again tomorrow। यहाँ पे जो विषय विशेष रूप में हमें समझना चाहिए कि कृष्ण जी का सुख दुख में उदासीन होकर, दे आर इंडिफरेंट टू कृष्ण's प्लेजर। लेकिन लोगों को जड़मय कर्म धर्म से, धर्म भी, कर्म शिक्षा केवल नहीं, धर्म भी शिक्षा देते हैं, बट बीइंग कंप्लीटली इंडिफरेंट टू कृष्ण's प्लेजर। वैदिक होकर भी, इट्स नॉट लाइक नॉन वैदिक पीपल, जबन और म्लेच्छ। वैदिक वैदिक होकर भी निरपेक्ष पक्वयोगी, निरपेक्ष मतलब उत्तम वैष्णव, शिव पर बुद्धि शून्य, इसीलिए निरपेक्ष। हु इज माइन, हु इज नॉट माइन, हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई एनिमी, ये सब चिंता नहीं है उत्तम वैष्णव का। ऐसा निरपेक्ष पक्वयोगी हु हैज परफेक्टेड हिज योग, योग इन द सेंस भक्ति योग, उनका निंदा करते हैं। वैदिक होकर भी निरपेक्ष पक्वयोगी को निंदा करते हैं। वैदिक होकर भी पक्वयोगी, यहाँ पे निरपेक्ष पक्वयोगी परमहंस, ये चैप्टर ही परमहंस के विषय में। वैदिक होकर भी निरपेक्ष परमहंस को निंदा करते हैं और अपना जो सिद्धांत है उसी को वैष्णव सिद्धांत बोल के बहलाता है, मतलब लोगों का बुद्धि नाश करते हैं। मूर्ख लोग उन्हीं लोगों को, उन्हीं सब वस्तु को वैष्णव सिद्धांत रूप में मान लेते हैं, मोह प्राप्त होते हैं और निरपेक्ष परमहंस को लघु बुद्धि के द्वारा वितर्क करके नष्ट होते हैं। पक्वयोगी अर्थात निरपेक्ष परमहंस वैष्णव का हृदय निष्ठा ये वैदिक लोग जान नहीं पाते हैं। हम लोग ये समझना चाहिए, वैदिक लोग परमहंस का हृदय समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कर्मजोर जो शिक्षक हैं उन्हीं को महापुरुष चिंता करके तद्रूप व्यवहार भी करते हैं। परमहंस महात्मागण इसी प्रकार लोगों को अवैष्णव जान के उनका संग नहीं करते हैं। परमहंस वैष्णव भी इनका संग नहीं करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर। वैदिक होकर भी निरपेक्ष उत्तम वैष्णव का निंदा करते हैं और अपना सिद्धांत को वैष्णव सिद्धांत के रूप में चला देते हैं, लोगों का बुद्धि नाश कर देते हैं। इसीलिए दैट्स व्हाई दीस पीपल से डू नॉट रीड दीज बुक्स, रीड ओनली माय बुक, आवर टेम्पल्स बुक, द बुक्स प्रिंटेड बाय अस।
हम लोगों ने ये पढ़ के चिंता करेंगे कहीं पे होंगे, शायद ये लोग जर्मनी में होंगे, या चांद में होंगे, या नरक में होंगे। ऐसा बात नहीं है, ये लोग हमारे ही बीच में है, ऑफिस में है। सब ऑफिस ऑफिस में बैठ गए हैं, ये सब कली का शक्ति से, कली का प्रभाव से। वैदिक हुआ है, अवैदिक नहीं है। तो वेदांतिक, वेदांतिक होकर निरपेक्ष, जो शिव पर बुद्धि शून्य परमहंस महावैष्णव, उनका निंदा करेंगे। वैदिक होकर परमहंस वैष्णव को निंदा करेंगे। हम लोग से ये क्या हो, यही हो रहा है। और ये लोग अपना सिद्धांत को वैष्णव सिद्धांत बोलेंगे, और क्या होगा, साधारण 42 लोगों का बुद्धि नाश करेंगे। और मूर्ख लोग, हम लोग क्या करेंगे, यही सब वस्तु को वैष्णव सिद्धांत मानेंगे, वैष्णव सिद्धांत मान के मोह प्राप्त होंगे, और निरपेक्ष परमहंस वैष्णव को लघु बुद्धि के द्वारा, वितर्कों के द्वारा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। परमहंस योगी का जो हृदय निष्ठा है, श्रीधर गोस्वामी महाराज, स्वामी गोस्वामी महाराज, और हमारा भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, बन गोस्वामी महाराज, जो जिन जन आचार्य, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इन लोगों का हृदय जान लेंगे ये लोग, जो कभी वैष्णव संग किया ही नहीं है। Is this because of their complexion of their skin, because of their citizenship, because of their birth in a country that is so called desirous by people like us? How is it possible? इसीलिए यहाँ पे लिखा है, निरपेक्ष परमहंस वैष्णव का हृदय निष्ठा वैदिक लोग नहीं जान पाते हैं। अगर वैदिक होंगे भी, आई डाउट इफ दे आर वैदिक, दे आर म्लेच्छस अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वैदिक भी कोई होंगे तो उन्होंने भी ये परमहंस वैष्णव का हृदय जान नहीं सकेंगे। अच्छा, सो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस क्वेश्चन टुमारो। धन्यवाद।